بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک امیر بڈھے سے شادی ہو گئی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرے ماں باپ کو لالچ دے کر اس نے مجھ سے شادی کر لی اور پھر سونے سے پہلے مجھے دم کیا ہوا زیتون کا تیل دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پورے پیٹ پر لگا کر سو جاؤ، پھر ہمارا بچہ ہو جائے گا۔ میں سوچتی کہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے، میرے قریب تو آتا نہیں تو بچہ کیسے ہوگا؟ لیکن میرے قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب ڈاکٹر نے کہا میں تو 2 مہینے سے میں شادی کی رات دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرے دل میں ارمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی اس رشتے پر مجھے کوئی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے ایک 60 سالہ بڈھے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھ پر ایسا ستم ڈھا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماموں کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، لیکن میری قسمت میں اس کا نہیں بلکہ ایک بڈھے کا ساتھ لکھا تھا، اور اسی بات نے مجھے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچی عمر کی محبت دل کو روشن کر دیتی ہے، اور پھر میرا دل بھی عدیل کی محبت سے روشن تھا، جس میں سیٹھ عابد کے نام کا اندھیرا داخل ہو گیا تھا۔ شادی کی رات جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ میرے باپ سے بھی کہیں زیادہ کی عمر کا تھا۔ ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا تو اس کی سانس پھولنے لگی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور میرا دم گھٹنے لگا۔ کمرے کا ماحول، پھولوں کی خوشبو اور اس عمر رسیدہ شخص کے ساتھ نے میرے اندر گھٹن کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ میں جو عدیل کو لے کر کئی سالوں سے اپنی آنکھوں میں خواب سجا کے آئی تھی، وہ سب جیسے وقت کی دھارا میں بہہ گئے تھے۔ میں اپنی ماں باپ اور قسمت کے ہاتھوں اپنی محبت ہار کر اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپنے جا رہی تھی۔ کہاں میں عدیل جیسے کڑیل جوان کی محبت میں گرفتار تھی، اور کہاں یہ ہانپتا کانپتا بڈھا میرے حصے میں آ گیا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، اور یہی بات میری بدنصیبی کی وجہ بن گئی تھی۔ اب تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں دوسری لڑکیوں کی طرح عام صورت کی ہوتی تو شاید میرے حصے میں یہ بربادی نہ آتی۔ میرا باپ ایک بنگلے میں ڈرائیور تھا، جو سارا دن محنت کر کے بھی چند روپے کماتا تھا، اور ہمارے گھر کا گزارا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ابا کو ہماری ذمہ داریاں بھی پوری کرنی تھیں۔ ابا کو تو اس بات کا بھی بہت غم تھا کہ اماں نے انہیں ایک بیٹا بھی نہیں دیا تھا اور ان کے سر پر 4 بیٹیاں مسلط کر دی تھیں۔ ابا اماں دن رات اسی فکر میں گھل رہے تھے کہ ہماری شادیاں کیسے ہوں گی، کیونکہ میں جوان ہو گئی تھی اور میری چھوٹی بہنیں بھی آہستہ آہستہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ ایسے میں سیٹھ عابد میرے باپ کی زندگی میں آیا اور سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ سیٹھ عابد کے پاس ابا ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے، اور ایک دن ابا تیز بارش کی وجہ سے سیٹھ عابد کو ان کے بنگلے لے جانے کے بجائے ہمارے ٹوٹے پوٹے گھر وہاں لے آئے، کیونکہ بارش کی وجہ سے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور وہ لوگ ہمارے گھر کے نزدیک ہی تھے۔ ابا نے موسم کا حال دیکھتے ہوئے سیٹھ عابد سے کچھ دیر رکنے کے لیے کہا تو وہ مان گیا۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسے ہی بارش کچھ کم ہوگی وہ سیٹھ عابد کو خیریت سے ان کے گھر چھوڑ آئے گا۔ ابا نے اماں کو اچھا کھانا پکانے کو کہا اور خود سیٹھ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابا تو اس بات پر بھی بہت خوش تھا کہ اس کا سیٹھ اس کے غریب کھانے پر آیا ہے۔ اماں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور ہم بہنوں کو کہا کہ تم لوگ سیٹھ کے آگے کھانا لگا دو۔ اماں نے خود سیٹھ کے آگے آنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اماں کو کیا خبر تھی کہ اس کی نظر تو اماں کی بیٹیوں پر ہی پڑ جائے گی۔ جیسے ہی میں کھانا لے کر کمرے میں پہنچی تو سیٹھ عابد کی حسرت بھری نگاہوں نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور مجھے دیکھتے ہی رہے۔ ان کی نظریں مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کھانا لگایا اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ جب انہوں نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرا نام پوچھا۔ مجھے سیٹھ کا یوں مخاطب ہونا مناسب تو نہیں لگا تھا، لیکن مجبوری تھی، اس لیے میں رک گئی اور میں نے اسے اپنا نام حسن بانو بتایا۔ سیٹھ عابد مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اپنے نام کی طرح ہی حسن کی دیوی ہو۔
ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, लेकिन अब्बा की खातिर मैं खामोश हो गई। अब्बा सेठ के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया हुआ था और सेठ आबिद इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अब्बा लौट कर वापस आ गया और मैं तेज़ी से कमरे से निकल गई। इन चंद लम्हों ने मेरी ज़िंदगी की काया पलट कर रख दी थी और सेठ आबिद ने उसी वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया था। अब्बा जब सेठ आबिद को उनके घर छोड़ने के लिए गया तो रास्ते में सेठ आबिद ने अब्बा से हम बहनों की तमाम मालूमात हासिल की और अब्बा का सारा दुख भी जान लिया। वो जान गया था कि अब्बा को बेटियों से कहीं ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। सेठ आबिद ने अब्बा से कहा कि अपनी बीवी के मरने के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गया है और उसकी कोई औलाद भी नहीं है, जबकि वो बेतहाशा दौलत का मालिक है। इसलिए वो चाहता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई शामिल हो जाए जिसके साथ वो अपना दुख सुख बांट सके। सेठ आबिद की बात सुनकर अब्बा कहने लगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है साहब कि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। सेठ आबिद ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बा को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया और उसे यकीन दिलाया कि अगर अब्बा मेरी शादी उससे करवा देगा तो वो अब्बा की तमाम मुश्किलें हल कर देगा, और क्योंकि उसकी जायदाद का कोई वारिस नहीं है इसलिए जब मैं उसकी औलाद को जन्म दूंगी तो सब कुछ खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। नहीं तो उनके इंतकाल के बाद उसके छोटे भाई उसकी सारी जायदाद के हकदार बन जाएंगे और उसका कोई नाम भी बाकी नहीं रहेगा। अब्बा का तो ऐसा लगा जैसे उनकी लॉटरी निकल आई है। सेठ आबिद जैसा मालदार शख्स खुद उनका दामाद बनने के लिए तैयार था। अब्बा के नज़दीक तो उसकी उम्र भी कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसकी जायदाद ने उसके सारे ऐप ढांप दिए थे। उस रोज़ अब्बा मिठाई का डब्बा उठाए खुशी खुशी घर आया और आते ही मुझे गले से लगाया। मैं हैरान थी कि मेरा अब्बा जो मुझसे सीधी तरह बात करना भी गवारा नहीं करता था, आज उसके लिए मैं इतनी अहम कैसे हो गई। अब्बा ने अपने हाथों से मेरे मुंह में मिठाई का पेड़ा डाला तो मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अम्मा हैरत से पूछने लगी कि ये बताओ तो आखिर माजरा क्या है जो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब्बा कहने लगा, हमारी बेटी के भाग जाग गए हैं। मैं अपनी हुस्न बानो का रिश्ता बहुत ही बड़ी जगह तय करके आया हूँ, तू भी सुनेगी तो दंग रह जाएगी। अब्बा की बात सुनकर मेरे हलक में पेड़ा अटक गया था और मुझे खांसी आने लगी। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर अब्बा को देख रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। अब्बा ने जैसे ही सेठ आबिद का नाम लिया तो मेरी सांसें रुक गईं और अम्मा भी हैरत से अब्बा को तकने लगी कि भला सेठ आबिद का रिश्ता मेरे साथ कैसे हो सकता है। अब्बा कहने लगे कि उसने खुद मुझसे हुस्न बानो का रिश्ता मांगा है। मैं क्या कोई बेवकूफ़ हूँ जो इनकार कर देता। बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद का बुढ़ा मालिक हमारे हाथ लग गया है। उसके पांव कब्र में हैं, आज नहीं तो कल वो कब्र में उतर जाएगा और अपनी हुस्न बानो करोड़ों की जायदाद की मालिक बन जाएगी। अब्बा की बात सुनकर अम्मा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो मेरी जान ही निकल गई कि मेरे बाप के साथ साथ मेरी माँ को भी करोड़ों की जायदाद नजर आ रही है। उन दोनों में से किसी ने भी मुझसे मेरी मर्जी या राय नहीं पूछी थी और ना ही इस बात का एहसास किया था कि सेठ आबिद अब्बा से भी कहीं ज़्यादा बड़ी उम्र का है। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं सेठ आबिद से किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। मैं अदील से मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ शादी करूँगी। मेरी बात सुनते ही अब्बा ने मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगे, तूने बहुत परपुर्जे निकाल लिए हैं। वो अदील एक मामूली से मेडिकल स्टोर पर काम करता है, तू भी सारी ज़िंदगी उसके साथ सिसक सिसक कर गुजारना चाहती है। मैंने तेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला किया है, इसीलिए अपना मुंह बंद करके सेठ आबिद के साथ रुखसत हो जा। तेरी छोटी बहनों का भी भला हो जाएगा। थोड़ी देर पहले वाला खुश मिजाज अब्बा कहीं गायब हो गया था और फिर अब्बा वापस घर आ गया और पुराना अब्बा वापस बाहर आ गया था। मैं जान गई थी कि अब्बा पैसे की चमक धमक के आगे अंधा हो गया है और अब उसे कुछ नज़र नहीं आएगा। उसी रात मैंने अदील को फ़ोन किया, उससे कहा कि मुझे यहाँ से कहीं दूर भगा कर ले जाए। मैं किसी कीमत पर सेठ आबिद के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आगे से अदील ने साफ जवाब दिया कि उसकी माँ उसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रही है, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं और उससे शादी के बाद मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। अदील की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं जान गई थी कि ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है।
अदील के लिए मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं थी। उसे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था तो मैं भला क्यों उसके पीछे खुद को ख्वार करती। इसीलिए मैंने खामोशी से सेठ आबिद का निकाह कबूल कर लिया और बिना आंसू बहाए सेठ आबिद के साथ रुखसत हो गई, क्योंकि आंसू बहाने की भी मेरे पास कोई वजह नहीं थी। सेठ आबिद का बड़ा सा बंगला देखकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, और जब शादी की रात वो कमरे में आया तो मैं पूरी तरह बुझ गई। मुझे अपनी सारी ज़िंदगी सेठ आबिद के साथ अपने जज्बात को मारकर ही गुजारनी थी। हर रात वो बहुत सारी दवाएं खाता और मेरे करीब आने से पहले ही गहरी नींद सो जाता, और सुबह तक उसे कुछ खबर ना होती। जब जब मैं सेठ आबिद को देखती तो मुझे अदील का चेहरा याद आता, लेकिन अदील की बातें मेरे कानों में गूंजती और मुझे उससे भी नफरत महसूस होती। सेठ आबिद के भाई भाभी हमारी शादी का सुनकर हमारे घर आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके भाई ने इतनी कम उम्र लड़की से शादी की होगी। थोड़ी ही देर में सेठ आबिद का भतीजा भी चला आया, वो भी मुझे देखकर हैरान था। सेठ आबिद ने खुशी खुशी सबसे मेरा तारुफ करवाया और मैं बेजारी से उनके मेहमानों के आगे बैठी रही। इस बड़े से बंगले में आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बस इतना बदलाव आया था कि मैं अब अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ इस्तेमाल कर सकती थी और मुझ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। ना ही सेठ आबिद ने पैसों को लेकर कोई रोक टोक लगाई थी। एक ड्राइवर हर वक्त मेरे लिए मौजूद होता, मैं जहाँ चाहती जा सकती थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से मुरझा गया था। शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि सेठ आबिद एक जैतून का तेल लेकर मेरे पास आया और कहने लगा, ये दम किया हुआ जैतून का तेल है, तुम रोज़ रात को इसे पेट पर लगाकर सो जाया करो, जल्द ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। ये सुनकर मैंने हैरत से सेठ आबिद को देखा कि ये कैसा पागल बुड्ढा है। भला जैतून का तेल पेट पर लगाने से मैं कैसे हामला हो सकती हूँ, जबकि सेठ आबिद तो मेरे करीब आने से पहले ही सो जाया करता था। तो फिर मैं जैतून का तेल लगाती या दवाई खाती, हामला होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन सेठ आबिद मेरे पीछे ही लग गया और हर रात अपने सामने मेरे पेट पर जैतून का तेल लगवाता और थोड़ी ही देर बाद बिस्तर पर लेटकर ऐसा सोता कि सुबह ही खबर लेता। मुझे यकीन आ गया था कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है जिसे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने भी पाबंदी से जैतून का तेल लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे जैतून का तेल लगाने में कोई मसला नहीं था। और सेठ आबिद भी इस बात से बहुत खुश था कि मैं उसकी कहीं हर बात मान रही हूँ। सेठ आबिद ने मेरे माँ बाप को एक अच्छा घर रहने के लिए दे दिया था और मेरी बहनें भी अब तालीम हासिल कर रही थीं। मेरी कुर्बानी देखकर मेरे घर वालों की ज़िंदगी वाकई बेहतर हो गई थी। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। मैं सारा दिन बंगले में मालकिन बनी घूमती फिरती और खाती पीती रहती। मेरी शादी को 5 महीने होने वाले थे और पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत मुस्तकिल अजीब सी हो रही थी। और जब ये बात सेठ आबिद के इल्म में आई तो वो ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं हमेशा ही डॉक्टर के नाम पर कतराती थी, क्योंकि सेठ आबिद के आगे मेरी कभी चली नहीं। वो अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को बीमार नहीं देखना चाहता था। डॉक्टर के पास जाने पर उसने कुछ टेस्ट करवाए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं तो पिछले 2 माह से हामला हूँ। ये सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे और सेठ आबिद के दरमियान कभी कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं बन सका कि जिसकी वजह से मुझे ये खुशी की खबर सुनने को मिलती। तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी? ये खबर सुनकर तो सेठ आबिद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था और उन्होंने सारे ज़माने में मिठाइयाँ बांट कर इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इतने बुढ़ापे में बाप बनने जा रहे हैं और उनकी जायदाद का वारिस आने वाला है। जबकि मैं अपना मुंह लपेट कर कमरे में पड़ गई थी। मेरे माँ बाप भी खुशी खुशी मुझसे मिलने आए थे। मेरी अम्मा कहने लगी कि अब तो इस घर में तेरे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे और सेठ आबिद की सारी जायदाद तेरी औलाद के नाम हो जाएगी और फिर तू सारी ज़िंदगी अय्याशी से गुजारना। मैंने एक अफसोस भरी नज़र अपनी माँ पर डाली, जिससे मेरा दुख नज़र ही नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे ये बात खाई जा रही थी कि मैं न जाने किसके बच्चे को अपने पेट में पाल रही हूँ। ये बात तो मैं 100% यकीन के साथ जानती थी कि ये बच्चा सेठ आबिद का नहीं है, लेकिन फिर ये बच्चा किसका था? सेठ आबिद मुझे अभी भी जैतून का तेल पाबंदी से लगाने का हुक्म देता था ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। एक रात सेठ आबिद जल्दी दवाई खाकर सो गया तो मैं भी जैतून का तेल लगाए बिना ही बिस्तर पर लेट गई।
वैसे भी मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मैं बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। हर रात जैतून का तेल लगाते ही मुझे सुकून की नींद आती, इसलिए मैंने सोचा कि उठकर तेल लगा लेती हूँ ताकि सो सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर से उठकर तेल लगाती, कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ, जो अंधेरे की वजह से मुझे नजर नहीं आया। एक साया सा मेरे करीब आया। मैं सांस रोक कर लेटी रही और आने वाला शख्स बहुत ही नरमी से मेरे माथे को छूने लगा। वो मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था, बहुत जल्द तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी और फिर मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा और इस खप्ती बुड्ढे से तुम्हारी जान छुड़वा कर तुमसे शादी कर लूँगा। मैं जानता हूँ ये बुड्ढा तुम्हें कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकेगा, इसके पास सिवाय दौलत के और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक मुकम्मल ज़िंदगी दूंगा और फिर हम अपनी औलाद के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इस शख्स की आवाज़ में बहुत अच्छी तरह पहचान गई थी और ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरे पेट में पलने वाला वजूद किसी और का नहीं बल्कि सेठ आबिद के भतीजे अरहम का बच्चा है। उसकी बात सुनते ही मैं उठकर बैठ गई थी। ये बात शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि मैं जाग रही हूँ। मुझे जागता देखकर उसने अपने हाथ मेरे मुंह पर रख दिए और मुझे कमरे से बाहर निकाल लाया। मैं उसके आगे बैठी थी और वो मुझे हर बात सच बता रहा था। वो कहने लगा कि जब उसने पहली दफ़ा मुझे सेठ की बीवी के रूप में देखा तो वो हैरान रह गया कि उसके ताया ने इतनी कम उम्र लड़की से कैसे शादी कर ली। और फिर उसने मेरे बारे में मालूमात हासिल की तो उसे पता चल गया कि सेठ आबिद ने मेरे बाप को बदले में बहुत सारा पैसा दिया है। वो जान गया था कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। उसे इस बात का भी इल्म था कि सेठ आबिद एक नाकारा इंसान है, लेकिन वो औलाद के लिए तड़पते हैं। इसीलिए उसने सेठ आबिद को औलाद का लालच दिया और उनसे कहा कि वो एक बाबा को जानता है जो ऐसे मर्दों के लिए तेल पर दम करके रखते हैं और उनकी बीवियां हामला हो जाती हैं। लेकिन इस जैतून के तेल में दरअसल एक ख़ास किस्म की दवा शामिल की गई थी जिसकी खुशबू से मैं बेहोश हो जाया करती थी। और कुछ घंटों के बाद जब उसकी खुशबू कम होती तो फिर अरहम मेरे कमरे में मेरे पास चला आता। सेठ आबिद को तो पहले ही नींद की दवाई खिला रहा था। अरहम कह रहा था कि वो पहली ही नज़र में मुझे अपना दिल दे बैठा था और वो मुझे अपनाना चाहता था, मगर उसे ये बात भी अच्छी तरह पता थी कि सेठ आबिद इतनी आसानी से मुझे आज़ाद नहीं करेगा। इसलिए वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बन जाऊँ और जब ये सच खुले तो सेठ आबिद खुद मुझे घर से निकाल दे। अरहम की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत की सच्चाई थी, लेकिन ये सोच कर ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई कि उसने मेरे साथ बदकारी की और एक नाजायज़ रिश्ते में मुझे अपने साथ बांध लिया। अरहम कह रहा था कि वो जानता है कि उसने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। सेठ आबिद जैसा शख्स मुझ जैसी हसीन और कम उम्र लड़की को कभी न छोड़ता। अरहम ने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा कि अब जब तुम सच्चाई जान गई हो तो हम ये सच जल्द ही सबको बता देंगे और मुझे यकीन है कि सेठ आबिद तुम्हें छोड़ देगा और फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। तुम अपनी इद्दत पूरी करने के बाद मेरी दुल्हन बन जाना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अब तक खुद को किस्मत के हवाले करती आई थी और एक दफ़ा फिर मैंने अपने आप को वक्त और किस्मत के हवाले कर दिया था। कुछ ही दिनों में अरहम ने अपने माँ बाप को सारी हकीकत बताने के बाद सेठ आबिद को सारा सच बता दिया। सच जानने के बाद सेठ आबिद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसे काबू कर लिया और कहा कि अगर दुनिया की नज़र में बदनामी से बचना चाहते हो तो खामोशी से हुस्न बानो को आज़ाद कर दो, वरना दुनिया को ये सच पता चल जाएगा कि तुम एक नामर्द हो और बाप बनने के काबिल ही नहीं हो। सेठ आबिद का भाई सेठ आबिद से कहीं ज़्यादा चालाक था और उसने बहुत आसानी से उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो मुझे आज़ाद कर दे। अरहम के माँ बाप मुझे अपने घर ले आए थे और बहुत इज्जत से उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दे दी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने अपनी इद्दत पूरी की और अरहम ने मुझे अपने निकाह में ले लिया। वो लोग सेठ आबिद से बहुत ही मुख्तलिफ थे। अरहम ने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी दी थी जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। अरहम को इस बात का बहुत दुख था कि उसने मेरे साथ शादी से पहले ही ताल्लुकात कायम किए, लेकिन वो मुझे पाने के लिए इस हद तक गया था। अक्सर वो सजदे में गिरकर खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगा करता और मैं खामोशी से बैठकर उसके बहते हुए आंसुओं को देखती। मैंने अरहम को माफ़ कर दिया था क्योंकि उसकी वजह से ही मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगी थी
اور میں بھی خدا سے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ بھی میرے شوہر کو اس کی بدکاری کے لیے معاف کر دے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو خدا اور بندے کے بیچ کا تعلق ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ ارحم کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے جائز تعلقات بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے غلط راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میں جو خود کو بدنصیب سمجھنے لگی تھی، مجھے یقین آ گیا تھا کہ خدا نے سب کے نصیب میں بہتر ہی لکھ رکھا ہوتا ہے، لیکن وقت آنے پر ہی انسان کو اس کے نصیب کا لکھا حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔